Good evening. Good evening. Is everybody awake? My name is Pastor Pablo, and we're going to have Brother Sifio is going to translate for me. Good evening. Hello. Okay. Yeah, fine. Good evening. शाम का सलाम आप सबको। How's everybody? कैसे हैं आप सारे? हाथ हिलाकर आप जवाब दे सकते हैं। Much better. So I'm Pastor Pablo from Arizona. पादरी साहब का नाम है पेब्लो और एरिज़ोना अमेरिका का एक शहर है, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। And God has brought me all the way over here just to tell you how good He is. खुदा यहाँ पर इसलिए लेके आया ताकि पादरी साहब बता सके कि खुदा हमारे लिए कितना अच्छा है। My ministry is Truth in Love Advent Ministry. और हमारी मिनिस्ट्री का नाम है ट्रूथ इन लव एडवेंट मिनिस्ट्री। Thank you. And today I just want to tell you that I've been blessed just by the worship, just by all you being here. It's been already a blessing to me. कहते हैं कि आपके लिए जिस तरह आज का कलाम बरकत का बायस बनने वाला है, मेरे लिए भी ऐसे है। I tell you, in America there's a lot of rude people, but in Pakistan there's so much love. कहते हैं अमेरिका में बहुत सारे लोग जो हैं उनका रवैया कई दफ़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में लोगों का रवैया बहुत अच्छा है। The hospitality of the Pakistanis is amazing. और कहते हैं कि जब ये मेहमान नवाजी करते हैं तो ये बहुत बड़ी शानदार बात है। Amen? आमीन। Amen. Well, today I want to share a message with you, and the message is entitled One Mediator Among Many Voices. आज का जो कलाम हम शेयर करने वाले हैं उसमें आज का जो मज़मून है वो ये है कि एक ही दरमियानी है तमाम आवाज़ों में। Does anybody know who that mediator is? और क्या आपको पता है वो दरमियानी कौन है? आवाज़ नहीं आ रहा। Jesus. यीशु मसीह। कौन है? Amen. आमीन। Amen. But before we get into it, I just want to pray so the Holy Spirit can use me. Amen. इससे पहले कि हम शुरू करें आइए हम दुआ करते हैं ताकि खुदा हमें कसरत से इस्तेमाल करे। So if you could bow your heads with me, I'm going to pray. और आप अपने हाथ उठा सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। Let's pray. आइए हम दुआ में। Dear loving Father who art in heaven, हमारे आसमानी बाप, Lord, we know that you are holy, holy, holy. और खुदा हम जानते हैं तू कदूस है और कदूस है। Lord, we come before you in the name of Jesus, और खुदावंद हम यीशु मसीह के वसीला से तेरे सामने आते हैं। asking you to speak to our hearts. खुदावंद हम चाहते हैं तू हमसे बात करे। Empty me, Lord, so that I can be a vessel used by you. और खुदावंद पाक खुदा तू मुझे अपने बर्तन की तरह इस्तेमाल कर। Because Lord, all I want to do is lift you up. और खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। I want you to be lifted up in the hearts of every single person in this place. और खुदावंद आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। Even those that may be listening from the outside. और खुदावंद पाक खुदा जितने बाहर भी लोग सुनते हैं तू उनको भी बरकत दे। And so Lord, fill me with your Holy Spirit. खुदावंद तेरे पाक रूह को मांगते हैं Anoint my lips और खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा मांगते हैं। and use me as your channel. और खुदावंद पाक खुदा तू अपने I pray that you surround this place with your holy angels. और खुदा तेरे पाक फरिश्ते इस सारी जगह को घेर लें। And that you will touch every heart in this और place. खुदावंद हर एक दिल को जान को छू। That when we leave this place, we would have been drawn closer to you. और खुदावंद पाक खुदा जब हम इस जगह को छोड़े तो खुदावंद ये लोग तेरे और ज्यादा करीब हो जाए। Because I ask this in Jesus' name. इस दुआ को यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। Amen. आमीन। So I'm going to share some scriptures this evening. आपके साथ कुछ हवाला जाता बांटना चाहते हैं। But I want to say a few things before I read a couple of scriptures to you. इससे पहले कि हवाला जात की तलावत की जाए आपसे कुछ कहना चाहते हैं। Let me ask you, who is the Savior?
आपसे पूछना चाहते हैं कौन निजात देहिंदा है? Jesus. Amen. सिर्फ यीशु। I'm here to lift up Jesus tonight. आज हम यीशु मसीह को जलाल दें And we want to know that He is the way. और हम सारे जानते हैं कि सिर्फ वही रास्ता है Jesus is the truth. और यीशु मसीह सच्चाई है Only in Jesus is there life. और यीशु मसीह में ही जिंदगी। So I'm going to share 1 Timothy chapter 2 verse 5. आज हम देखेंगे पहला तिमोथियस उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत को। The Bible says this. बाइबल में ये लिखा है There's one God. खुदा एक है There's one mediator और दरमियानी भी है who's between God and man. जो खुदा के और हमारे दरमियान है। And that man is Jesus. और वो इंसान यीशु मसीह। You want to get to God, go through Jesus. और आप खुदा के पास यीशु मसीह के वसीला से जा सकते Because in Christ you'll be safe. हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आपको निजात दी। I also want to share Ephesians chapter 4 इफिसियों की किताब निकालेंगे उसके चौथे बाब में देखेंगे verses 4 to 6. और उसकी चौथी आयत से छठी आयत तक देखेंगे। It says there's one body, एक ही बदन है one spirit, और एक ही रूह है even as ye are called in one hope. चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए हो आपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक है Of your calling, and there's one Lord, और एक ही खुदावंद है one faith, एक ही ईमान one baptism, और एक ही बपतिस्मा one God and Father of all, और सबका खुदा और बाप एक ही है who is above all, जो सबसे ऊपर और सबके दरमियान and through all, और सबके अंदर and in you all. सबके अंदर Amen? आमीन। One God, one faith, one hope, Jesus Christ, एक खुदा एक ईमान और एक उम्मीद और वो यीशु मसीह and one body. और एक बदन। You know, where I'm from, there's a lot of segregation. कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ रवैये होते हैं Every religion wants to put up walls. और फिर जो हमारे मजहब हैं उन्होंने भी ये अपने लिए एक दीवार खड़ी की। But I learned something here in Pakistan. लेकिन कहते हैं मैंने पाकिस्तान में एक बात सीखी है Here, the Pakistanis are building bridges. पाकिस्तान में लोग इस तरह से नहीं They're not building up walls. और वो दीवारें भी नहीं बनाते In other words, everybody comes together to worship God. और इनकी कोई हद नहीं है सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर Amen? आमीन Praise the Lord. खुदा की तारीफ है So, God is trying to bring us into one body. और खुदा हमें एक बदन बनाता है Jesus is the head of the church. और कलीसिया का सर यीशु मसीह है And each one of us have a part to play. और हम सारे उस बदन का हिस्सा हैं But you know what the most important part to play is? और आपको पता है कि इस बदन का सबसे अहम हिस्सा कौन सा है Is to lift up Jesus. वो यीशु मसीह है Now, I just want to tell you something. There's a lot of voices in the world. दुनिया में बेशुमार आवाजें हैं There's a lot of angels that want to speak to our hearts. और बहुत सारे फरिश्ते हमारे दिल से बात करते हैं You have good angels and you have evil angels. आपके पास अच्छे फरिश्ते भी आके बात करते हैं और बुरे फरिश्ते And each of them are battling for you in your mind. और आपके अंदर एक कश्मकश चल रही है So you're going to hear many voices, not only from the angels, but from all over the place. और आप उन सारे फरिश्तों की बातों को सुनते हैं The media, the music, the television, they're all trying to pull you in और different ये voices. आवाजें मीडिया के जरिए टीवी के जरिए रेडियो के जरिए और भी मुख्तलिफ तरीकों से आप आवाजें सुनते हैं But how do we distinguish the voices of light versus the voices of darkness? तो हम किस तरह से उस फर्क को पहचान सकते हैं जो बदी की आवाज है और जो रास्तबाजी की आवाज Because the Bible does say that Satan wants to come as an angel of light. और बाइबल में लिखा है कि इब्लीस भी नूरानी फरिश्ते की शक्ल में आ जाता That means the devil's not going to come to you and speak to you saying, with a scary voice or anything like that. है और इब्लीस इस तरह से नहीं आता कि वो आपको डराने वाली आवाज में आपसे बात करे Satan is going to come speaking nice words. और इब्लीस तो इस तरह से आता है कि वो हमदर्दी से नरमी से हलीमी से आपसे बात करे But how do we know the difference? लेकिन हम इस आवाज को किस तरह से पहचान How do we know it's not Satan speaking to us? हमें कैसे पता चलेगा कि वो शैतान की आवाज है Let me read you 1 Corinthians chapter 14, आइए हम पहला ग्रंथ को देखते हैं उसके 14वें बाब को देखते हैं verses 10 and 11. उसकी 10वीं और 11वीं आयत को देखते हैं And if you're good students, you're going to be writing these things down.
अगर आप अच्छे तालिब इल्म हैं तो आप इन आयात को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। How many good students do we have in the house? आज यहाँ पर कितने लोग हैं जो अच्छे तालिब इल्म हैं, जो अपनी डायरी लेके आए? All right, praise the Lord. खुदा आपको बख्शे। So the Bible says this, बाइबल में लिखा है, there are, it may be, दुनिया में ख्वाह कितनी ही so many kinds of voices in the world, मुख्तलिफ ज़बानें हों, and none of them is without significance. उनमें से कोई भी बेमानी ना होगी। Therefore, if I know not the meaning of the voice, बस अगर मैं किसी ज़बान के मानी ना समझूं, I shall be unto him that speaketh a barbarian, तो बोलने वाले के नज़दीक मैं अजनबी ठहरूंगा, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. और बोलने वाला मेरे नज़दीक अजनबी ठहरेगा। So when a voice is speaking, we want to know what it's saying. और जो आवाज़, जो कोई भी हमसे बात करता है, हमें पता होता है कि ये क्या बोल रहा है, We want to make sure that we only allow voices of truth into our minds. और हमें इस बात को सीखना है कि हमने सच्चाई की आवाज़ को पहचाना। Do you agree with that? क्या आप इस बात से एग्री हैं? If you agree with that, just wave your hand. अगर आप इस बात से इत्तेफाक करते हो तो अपने हाथों को लहराएं। Amen. You don't want to be Amen. deceived. आपको पता है शैतान धोखा देना चाहता है। So how do we know? हम किस तरह से पहचानें? Here's the recipe. This is the key. और यहाँ पर एक हमारे पास पहचानने का तरीका है, It's found in Isaiah chapter 8 and verse 20. और ये यशायाह की किताब उसके 8वें बाब की 20वीं आयत में पाया जाता It है। says, to the law and to the testimony, शरीयत और शहादत पर नजर करो, if they speak not according to this word, अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले it is because there is no light in them. तो उनके लिए सुबह ना हो। So what is the acid test? तो फिर यहाँ पर सबूत किस तरह से हो सकता है? How do you know what the truth is? कैसे आप पहचानेंगे कि सच्चाई क्या है? It has to line up with the word of God. तो हमें खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो Amen. करनी। आमीन। That's the only way it's going to work. सिर्फ यही एक तरीका है If कि it हम, doesn't line up with the word of God, then there's a problem. अगर हम खुदा के कलाम से हट जाते हैं तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। That means everybody in this place has some homework to do. इसीलिए आज हमें अपना काम मुकम्मल करने की जरूरत है। What is the most important book you need to study? कौन सी सबसे अहम किताब है जिसको पढ़ने की जरूरत है? Anybody? क्या कोई बताना चाहेगा? The Bible. यस, बाइबल। We need to study the Bible. हमें बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। Is it good to listen to preachers to preach? और जब कोई समझाता है उससे भी अच्छा है कि आप खुद पढ़ें। Anybody like to listen to a good sermon? आप जानते हैं कि कई लोगों के आप सरमन जो है पसंद करते हैं। Anybody? यस, Is it good for teachers to teach? हाँ, ये तो उस्ताद के लिए अच्छा है कि वो सिखाता है। How many like to be taught? Like to listen to somebody who knows what they're talking about? कौन से कितने लोग हैं जो समझ जाते हैं कि ये क्या बात हुआ? It's good, right? हाँ, बहुत सारे लोग कलाम को सुनते हुए समझ रहे होते हैं कि क्या बात That's why children go to school to learn. है। इसीलिए तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं वहाँ पर सुनने। Amen. So it's good to listen to teachers teach. और ये अच्छा है कि आप उस्तादों से सीखें। It's good to hear preachers preach. और जब कोई कलाम सुनाने वाला कलाम सुनाता है तो आप सुने। But the only way you're going to know if they're teaching and preaching the truth लेकिन अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं is by studying for yourself. तो फिर खुद कलाम को पढ़ना शुरू करें। Nobody's going to study for you. कोई भी आपके लिए कलाम का मुतालिया नहीं करेगा। See, getting ready for heaven takes work. अगर आप आसमानी बादशाही में जाना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है। It takes some human effort. ये इंसानी मशक्कत की बात है। How many are in school today? How many go to school? आप में से कितने लोग जो है स्कूल जाते हैं? Anybody? Okay, good. We have a lot of students in the front. How many have graduated school? कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, 14 साल की तालीम हासिल कर चुके How many got a degree? You got a degree? हैं? या डिग्री किसने हासिल की? हाथ दिखाएं, ऊंचा हाथ करें। Okay, so Up to you people. to get your degree, you had to pass a final exam, right? आपको पता है कि जब आपने डिग्री को हासिल करना है तो आखिरी एग्जाम जो होता है Is that उसके पास करना true? Is it true? है। ये सच है ना? Students, या। do you take tests? आप जो तालिब इल्म हैं, आपके टेस्ट होते हैं, इम्तिहान होते हैं। If you want to pass to the next grade, you have to pass a final exam, don't you? आपको फिर जो वो फाइनल टर्म का एग्जाम होता है ना, वो पास करना होता है अगर आप अगली क्लास में जाना Is चाहते it true? हैं। ये सच है। Yes? Okay. How many plan to go to heaven? तो आप कितने आसमान पर जाना चाहते हैं?
सारी जाना चाहते हैं? Do we have to take a final exam? तो क्या आप उस आके इम्तहान को लेना चाहेंगे? Yes. यस। Yes. So study the scriptures. Amen. तो फिर बाइबल मुकद्दस का मताला शुरू करें, Because it is Jesus' voice that needs to be our guide. क्योंकि कलाम मुकद्दस यीशु मसीह की आवाज़ है जो हमारी रहनुमाई करती है। Exodus chapter 15 verse 26 says something very important. खरूज की किताब उसके 15वें बाब की 26वीं आयत को जब हम देखते हैं, You know, God has so much information for us. खुदा ने हमारी मालूमात के लिए बहुत ज़्यादा इल्म इस किताब में रखा। Matter of fact, the word Bible, I think as an acronym. बाइबल की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे बतालिया के लिए, हमारे समझने के लिए। B-I-B-L-E. और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो इसके स्पेलिंग BIBLE है। The basic instructions before leaving earth. हाँ, कितनी शानदार बात है। इससे पहले कि आप इस ज़मीन को छोड़ें, आपके लिए बुनियादी मालूमात हदायत। If we plan to leave earth to go to heaven, we need to अगर आप तैयार हैं कि इस ज़मीन को छोड़कर आसमानी बादशाह में जाना चाहते we हैं, need to study the manual. तो फिर हमें बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। Notice what it says in Exodus. आइए हम खरूज की किताब में देखते हैं। If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. तो यहाँ पर लिखा है कि अगर तो दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने And will do that which is right in his sight. और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, And will give ear to his commandments. और उसके हुक्मों को माने, And keep all of his statutes. और उसके आयन पर अमल करे। He says, I will put none of the diseases upon thee which I have brought upon the Egyptians. तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, For I am the Lord that क्योंकि heals. मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। Amen. आमीन। We want to be healed. हम शिफा पाना चाहते हैं, Every one of us have been bitten by the serpent. और हमें पता है कि शैतान के वर्गलावे में हम आ चुके हैं, Every one of us have been born in sin, shaped in iniquity. और हमें पता है कि हम पैदाइशी तौर पर गुनहगार हैं, But God wants to take sin out of our lives. और खुदा तो इस गुनाह को हमारी जिंदगी से दूर करना चाहता He है, wants to cleanse us from all unrighteousness. और वो तो हमें रास्तबाजी में लेके आना चाहता Do है। you think God has the power to do that? क्या आप यकीन रखते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है? He says He's able to keep you from falling और वो कहता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं and to आपको, present you faultless before the presence of His glory और वो आपको पाक कर सकता है, with exceeding joy. और फिर आपको इंतहाई मसरत। Jude 24, by the way. आइए हम एक और हवाला देखते Do हैं। you think God's voice still speaks to you today? क्या आप समझते हैं कि खुदा आज आपसे बात कर रहे हैं? We know that in the Old Testament He spoke to Moses on the Mount Sinai. पुराने अहद में हम देखते हैं कि खुदा मूसा से बात करता है कोई सीना पर। But does He still speak to us today? क्या वो आज हमसे बात कर रहा है? Yes. हाथ ले आकर दिखा दे जरा। Notice what it says in Hebrews chapter 1, आइए हम अब्रानियों की किताब को देखें, verses 1 to 3. और उसके दूसरे बाब की पहली और दूसरी। It says, God who at sundry times and in diverse manners इसमें लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें हमने सुनी spake in time past unto the fathers by the prophets. उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, But He has in these last days ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाए। spoken unto us by His Son, और हमें पता है कि यीशु मसीह के जरिए से खुदा के ज़माना में बात कर, whom He has appointed heir of all things, और उसने हर एक चीज़ पर यीशु मसीह को मुख्तार बनाया, by also who He made all the worlds. और उसी के वसीला से सारी कायनात तख्लीक हुई। Notice what it says here. यहाँ पर जरा गौर करें, But it's talking about Jesus. जब हम यीशु की बात करते हैं, It says Jesus यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह, is the brightness of God's glory और यीशु मसीह जलाल है, नूर है, and the express image of His person. और वो खुदा के जलाल का परत है। This means that when you want to know what the Father looks like, अगर आप जानना चाहते हैं कि बाप कैसा है, who do you need to go to? तो फिर आपको किसके पास जाना चाहिए? उसकी खुदा को जानने के लिए किसके पास? Jesus. यीशु मसीह। Amen. आमीन। The Father does not behave differently than the Son. और खुदा जो है वो बेटे के मुखालिफ कोई बात नहीं करता, And
Jesus wants to transform us into His likeness. और यीशु मसीह तो हमें बाप को हम पर जाहिर करता है। He wants you to be able to love your enemies. और वो चाहता है कि आप अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें। How many of you love your enemies? आप में से कितने हैं जो अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखते हैं? Just a couple of hands. या थोड़े से हाथ हैं जो अपने दुश्मन से मोहब्बत रखते Only a couple of hands. हैं। थोड़े से हाथ। Does that mean the rest of you hate your enemies? तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी तो अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं। How many? All of you hate your enemies? क्या आप सारे अपने दुश्मन से नफरत करते हैं? Jesus said, "Love your enemies. यीशु तो ये कहते हैं अपने दुश्मन से Bless मोहब्बत those that करो curse you. और उन पर उनके लिए बरकत की दुआ Pray मांगो for जो आपका those who नाम despitefully use you and persecute you." और जो आपको सताते हैं उनके लिए दुआ करो। Can you do that? क्या आप ऐसा करते हैं? Only by the grace of God. सिर्फ खुदा के फजल से आप ये कर सकते Only if Jesus is in your heart. हैं। अगर यीशु आपके दिल में है तो फिर आप ऐसा कर You सकते see, God wants to change you. हैं। आपको पता है खुदा आपको बदल सकता He है wants to change me. और वो हम मुझे भी बदल सकते He wants to reflect His image हैं और वो अपना अक्स जो है वो हमसे नकश कर सकते through you and me. हैं और आपके जरिए और मेरे जरिए वो ऐसा करते And He wants us to become one with Him. हैं और इस तरह से हम उसमें एक हो जाते हैं। You see, the voice of Jesus is the only voice really that reveals God. आपको पता है जो यीशु मसीह की आवाज है सिर्फ वही The prophets tried to reveal Him. वही खुदा बाप को जाहिर करती है और नबियों ने ऐसे की Christians tried to reveal Him. और हम देखते हैं मसीही जो है वो अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं I tried to reveal Him. और कहते हैं मैं भी मसीही हूँ मैं भी अपने आप को जाहिर करता But we are imperfect vessels. हूँ लेकिन हमें इस बात का पता है कि हम तो ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल नहीं हैं But who's the one that revealed Him to the fullness? और क्या कोई कामिल है? Jesus. सिर्फ यीशु मसीह कामिल है। And you know, I want to read something to you from John 17:3. आइए हम यूहन्ना रसूल की अंजील को देखते हैं उसके 17वें बाब की 30वीं आयत को And it reveals to us what life eternal really is. और यहाँ पर लिखा है कि हमेशा की जिंदगी क्या है। Anybody want life eternal, eternal life? आप में से कितने लोग हमेशा की जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं? हाथ लहरा कर दिखाएं जरा। So this is the formula. यहाँ पर एक फार्मूला है This is the way. और यहाँ पर एक तरीका है। Notice what it says. यहाँ पर क्या लिखा है जरा गौर कीजिए। This is life eternal. और हमेशा की जिंदगी ये है That they, talking about you and me, और यहाँ पर देखिए जरा वो आपकी बात हुआ might know the only true God कि हम यीशु मसीह को सच्चे खुदा को जाने and Jesus Christ और यीशु मसीह को whom thou hast sent. जिसे खुदा ने भेजा है। So eternal life, brothers and sisters, यहाँ पर गौर करें कि हमेशा की जिंदगी क्या है? is to get to know God खुदा को जानना in the right way. सही मानो में। Amen? आमीन। Many of us have the wrong concept of God. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके दिल में ऐसे है कि वो खुदा के बारे में सही तसव्वुर नहीं है We think God is a harsh God. और कई दफा हम सोचते हैं खुदा बड़ा जालिम है We think God is a violent God. और खुदा बड़ा दुख देने वाला खुदा है We think God is like a vengeful God. और खुदा बदला लेने वाला है। But I'm here to tell you today that He's none of those things. मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ Because God has given us revelations खुदा ने हमें अपना मुकाशफा दिया है from His own voice. उसकी अपनी आवाज। Notice what 1 John 1 verse 5 says. पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 5वीं आयत। This is John. You know the apostle John, the disciple John? ये यूहन्ना है क्या आप जानते हैं ये कौन सा रसूल है? You know he's called the beloved. और ये तो बड़ा मोहब्बत करने वाला यीशु का महबूब है You know he wrote the book of Revelation. और इसी ने मुकाशफा की किताब लिखी। Yeah? Okay, good. John sums up the message that Jesus came to bring to the world in one sentence. और यहाँ पर लिखा हुआ है उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीफ है। Can you imagine this apostle can sum up the fullness of the message of God in one sentence? और यहाँ पर गौर करें कि ये रसूल जो है अपने सारे मैसेज को अपने सारे पैगाम को एक फिक्रे में कह देता है। And notice what he says. यहाँ पर गौर करें जरा क्या कहता है। He says, वो कहता है this then is the message we have heard of Christ. उससे सुनकर जो पैगाम
हम तुम्हें देते हैं। And this is the message that we declare unto you, और ये वाला पैगाम आगे हमें सुनाया गया है that God is light, कि खुदा नूर है and in him there is no darkness at और all. उसमें जरा भी तारीकी नहीं। Imagine that. तसव्वुर करिए, No darkness at all in God. खुदा में कोई तारीकी नहीं है। जरा। Darkness includes sin, suffering, sickness, death, all of that stuff. और तारीकी जो है ये आपको पता है कि ये बदी को जाहिर करती है, बीमारी को जाहिर करती है, What गुनाह को जाहिर करती John is revealing to us is that nothing that is dark comes from God. है। और यूहन्ना रसूल हमें ये बताना चाहता है कि बदी खुदा की तरफ से नहीं आती। When something bad is happening to you, it's not God who's doing it. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये खुदा की तरफ से नहीं। God said, I didn't come to destroy men's lives, I came to save them. और यीशु तो कहता है कि मैं दुनिया को हलाक करने नहीं बल्कि निजात देने के Do लिए। we believe that? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? हाथ लहराकर दिखाएं जरा। Amen. Amen. Praise the आमीन Lord. आमीन। 2 Corinthians 4:6. दूसरा ग्रंथ निकालेंगे उसके दूसरे चौथे बाब की छठी आयत को देखें। For God, who commanded the light to shine, इसलिए कि खुदा ही है He commanded it to shine out of the darkness. जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका He has shined in our hearts और हमारे दिलों पर चमक गया to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. और वो हमें जलाल देता है That the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को ना देख सके। Notice what he says next. यहाँ पर देखिए साहब क्या लिखा है। He's talking about those who read the writings of Moses. वो मूसा की लिखी हुई बातों की भी बात कर He says, but their minds were blinded. और वो कहता है कि उनके तो ज़हन For until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of, so their minds were blinded until the veil was taken away. और ज़हन जो है वो बंद हो जाते हैं। But even unto this day, when Moses is read, और यहाँ पर जब हम मूसा की बात सीखते हैं the veil is upon their hearts. तो वो पर्दा जो है वो उनके दिलों पर है। Nevertheless, when it shall turn to the Lord, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो वो पर्दा जो है वो उठ जाता है। the veil shall be taken away. वो पर्दा जो है वो हट जाता है। That means, is there a veil in our minds when we're reading the Old Testament? Is there a veil? इसका मतलब अगर हमारी अक्ल पर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है Is there an obscurity there? तो फिर हम डरे हुए हैं Is God a vengeful God? और फिर हम खुदा को इस तरह से लेते Is हैं, God पकड़ an लेते हैं। angry God? वो गुस्से वाला नजर आता है Is God coming after you with a baseball bat to beat you every time you mess up? और फिर खुदा आपसे हर बात में बदला ले। Or is He coming to love you and to restore you and to heal you? लेकिन नया धर्म में हम देखते हैं कि यीशु जो है वो आया ताकि आपको बहाल करे Does He have His hands open wide saying, come unto me, all ye that labor, और and are उसने heavy तो laden, अपने हाथ खोल I will दिए give you rest. कि मेरे पास हो ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। You know, they asked Jesus, where did you get those holes in your hands? और यीशु कहता है कि अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। You know what Jesus said? यीशु ने क्या कहा जब उसने अपने हाथ खोले हुए थे? These are they that I received in the house of my friends. ये तो वो लोग हैं जिनको मैं अपने बाप के घर में लेकर He didn't look at those that were putting nails in his hands as enemies. और वो तो दिखाता है कि मेरे हाथों में कील लगे हुए He हैं looked at them as friends. और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त When बनाऊं। they were crucifying him to the cross, he said, Father, forgive them, for they know not what और they do. यीशु की कितनी शानदार बात है कि जब लोग मुझसे मसलूब करें वो कहता है That's the "बाप mind of माफ।" Christ. और ये यीशु है, That's the mind of God. ये खुदा है काज़ी, That's the character of God. ये खुदा का किरदार है। That's what we need to know. ये हमें समझने की We जरूरत need to know who है, God हमें is. जानने की जरूरत है कि Amen? खुदा कौन है। Amen. You want to know God more? क्या आप खुदा के बारे में और जानना चाहते हैं? Only two people. Sorry, I'm done. ओके यू कैन हाथ हिला सकते हैं, आप बता सकते हैं आप खुदा को God जानते bless. Don't worry, I'm done. हैं। ओके कह रहे हैं खुदा आपको बरकत दे, मैंने अपना Listen, पैगाम it's life or death. ये जिंदगी और मौत की It's बात, life or death. ये जिंदगी और मौत की बात Eternal life is in knowing God. और हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह को जानने में 1 John 4 verse 8 and verse 16 says God is love. पहला यूहन्ना उसके चौथे बाब में और फिर And love does not believe itself unseemly. और मोहब्बत जो है वो अपनी बेहतरीन You है। want to know what love looks like?
आपको पता है मोहब्बत कैसी है? Go to 1 Corinthians chapter 13 आप पहला ग्रंथियों उसके 13वें बाब में पढ़े मोहब्बत के बारे में, and look at verses 4 to 7. और उसकी 4 से 7 आयत तक And पढ़े। if you read that, अगर आप ऐसा पढ़ते हैं, you're looking at God. आप खुदा को देखते Amen? हैं। आप Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Well, हाथ हिलाकर जवाब दें हालेलुया। I'm leaving some time for my brother because we have another presentation for you. So I'm going to just close out this presentation with a word of prayer. But I want to say thank you for letting me share with you. And I pray that it was a blessing to you. हमारे दरमियान पास्टर किस्टो हैं जो हमारे साथ एक और पैगाम जो है वो बांटेंगे। इससे पहले कि वो यहाँ पर आए, हम दुआ मांगेंगे और दुआ के साथ इस पैगाम का एहतमाम करेंगे। I hope that if anything, you would have been inspired to go study the scriptures for yourself to see the face of God in Jesus. अगर कोई चीज़ आपको मुतासिर कर सकती है तो खुदा का पाक कलाम है, जाएं इसका मुताला करें, Amen. इसको सीखें। आमीन। Praise the Lord. Let's pray. आइए दुआ मांगें। Dear loving Father who art in heaven, खुदावंद आसमानी बाप, hallowed be your most holy name. तेरा नाम पाक माना जाए। I thank you, Lord, for using me to speak to your people here. खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे इस्तेमाल किया इन लोगों के लिए, We all need to know you more. ताकि हम तुझे और ज़्यादा गहरे तौर पर जान सकें We all need to study you more. और तेरे बारे में मुताला कर सकें, We need to see who you are और हम इस बात को देख सकें कि तू so that कौन we है, can fall in love with you. और खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, So that our worship to you is not motivated by fear. और खुदावंद खुदा हम डर से तेरी इबादत नहीं That our करते, love for you is not motivated by our hope of reward. और खुदा हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझसे ही उम्मीद रखते हैं, But our worship to you will be motivated by gratitude because of your love for us. और खुदा हमारी मोहब्बत तेरी शुक्रगुजारी में, We want to have the power to love our enemies. और खुदा तो हमें हिकमत और दनाई अता करता कि हम We अपने want to दुश्मन have से the मोहब्बत करें, power to turn the other cheek. और खुदा तो हमें कुव्वत अता करके हम उनके साथ But we अच्छा need सलूक your करें, mind. और खुदा हम तो तेरे जैसा So ज़हन चाहते bless these people, dear हैं। God. खुदा इन लोगों को बड़ी बरकत, Draw them to your word. और खुदा दिन को अपने कलाम के पास ला, Draw them closer to Jesus. और खुदा दिन को यीशु के पास आने की तौफीक दे, That they may see you for who you really are और खुदा इस बात को जान सके कि तू कौन है, and fall in love with you. और खुदा ये तुझसे मोहब्बत कर सके। This is my prayer ये मेरी दुआ है in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। सारे खुदा के जलाल के लिए, खुदा के कलाम के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। भरपूर तालियां जाकर हम पास्टर पैब्लो का शुक्रिया अदा करेंगे। भरपूर तालियां जाकर ताख़ीर किए बगैर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं पास्टर किस्टों को दावत देता हूँ कि वो भी आएँ और खुदा के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। तो किस्टों प्लीज़ कम एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आपकी भरपूर तालियां हैं। Hallelujah. Hallelujah again. हालेलुया दोबारा से कहें, Come on, praise the Lord, somebody. Amen. जोर से कहें। Hallelujah.